हेलो। या सर जस्ट वांट टू नो इस बैच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? क्योंकि इन 35 बताया गया था मैक्स। ओके, एनी रीजन फॉर दैट? जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कितना स्टूडेंट्स है क्या है। मतलब आपका भी फोकस उतना होता है ना स्टूडेंट्स पे। ओके, नो आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट, देखेंगे ना आज। Okay, so let us begin the session. I hope that my screen is visible for everyone. Could you please confirm from your side? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you for the confirmation. So let us begin. Okay, now, as we have also discussed some of this topic, which is very much few in contrast, but yes, in the last session we have understood and we have discussed some of this topic. So I'll just have a recap for that. So anyhow, will be easier for everyone because there might be some people who are, or let's say, who has joined for the first time. Okay, for them also there will be an revision. Also, there will be an perspective that what we are going to work on. So remember that we are here. Okay, anyone who asks you regarding your batch name, so it's data analytics January batch. Okay, Jan batch. Since we have started from Jan, the demo was started on on this particular month, so it is given with Jan 2025. Okay, this is your batch ID, or let's say batch number or batch details. With this respect, then anyone who how many of student join over here, it's not exactly what I'm concerned, but yes, over here, whoever is joining over here, you have to make sure that those people should refer this as your batch ID. Now, with respect to that, we are going to focus four major tools over here, which is Excel, MySQL as a database, then Python for data pre-processing. Specifically, this will help you not only in the means of let's say data analytical perspective also, but who knows in future if you may think to move on for ML, machine algorithm, or let's say for that may also help you, machine learning process also. And then we also have Power BI. I will just write it down as a PBI, Power BI. This is a visualization tool. So these are the four particular tools that we are going to focus and we I are have going to one question. learn. Okay, what we are going to learn over here, we are going to focus to understand how data pre-processing, which is backbone of any process. This is what we are going to focus on to learn and implement the data pre-processing, how we can apply on in an Excel as a tool. Then we will also understand how we can apply in MySQL because MySQL is totally a different language. Okay, it's totally a language that we need to understand that. We'll understand that also. And then we will apply on this particular MySQL also. Then we'll understand in Python also because overall, comparing with this Excel and comparing to Power BI, you will find that pretty much this MySQL and Python is a bit comparatively a bit difficult to understand. But don't worry, okay? There's nothing that you cannot do it. It's simply that more efforts is required overall compared to this Power BI and Excel. Okay, but when you will understand and when you'll work on, you'll find that Python, which is again more complex and more, let's say, difficult over MySQL, you will find that Python is much more sophisticated and it's much more enjoyable compared to three of others.
Okay, you'll find it out. So in this way, we'll have to deal with this. But overall, our main focus will be understanding how data pre-processing is done in any of a tool which is present. And if anybody asks you, can you process data in Excel? Yes, we can do that. Can you process in MySQL? Yes. In Power BI? Yes. And in Python also? Yes. There will be some limitations. Obviously, there are some limitations because there are functions, because there are some methodologies which are not always applicable in every tool. There are some limitations by itself. But overall, how we can manage it, we will understand that also. So over here, who are in this session for the first time, let me introduce myself. I am Deepak Bhatlavandi. This is my name. I'm a data scientist who has worked on different projects, different domains, different industrial aspects. If you look over here, I have 10 plus years of experience in different industrial domains, not only in manufacturing, not only in pharmaceutical, not only in let's say insurance, not only in processing, and every most of them I have done. Okay, so with respect to that, I am here to share my knowledge. I'm not here to let's say uh, give some other lectures, but yes, over here to share my knowledge. So obviously we both will grow. Okay. Okay. So those people who might think whenever we are going to study this or whenever we are going to learn this data preprocessing part, what are the opportunities that we will be getting over here? Okay. But as a data analytics, you should know that you can ask yourself to become a DA, and you can become as a BI also, and you can become BA also in some context. If you have some background or some, let's say, knowledge of regarding business intelligence, or let's say business MBA or business analytics, if you have some knowledge according that, you can have this. Because see, if you look over the syllabus on an internet or on let's say tool wise or let's say topic wise, you will find that these three role over here to what I'm talking over here, this three role over here has somewhat the same details. Okay, there's not a huge aspect of a difference. There's not a huge difference. So if you have, or if you can give efforts on three of them to hone it, yes, you will obviously have these opportunities. But there are some differences in between them. So what exactly data analytics do, and what does BI and what does BA has to offer? Business, let's say data analytics and business analytics does not have that much of difference because both of them are working on historical data and current data only. The major difference or aspect of data analytics is that data analyst is a person who works on raw data and historical data. Okay, it works on historical data and raw data, which provides you in means of cleaning, preparation, preparing a data in such a way that the data will be having minimum issues, minimum problem, or let's say there would not be any issues and problems in the data. Once a data analytics completes its data, it properly provides the data, he then forwards it to BI. BI is for business intelligence person. The business intelligence person, what it does, based on historical data provided from the data analytics person, based on his request, मतलब सिंपल सादे शब्दों में आपको बताऊं मैं हिंदी में, तो जो डेटा एनालिटिक्स वाला बंदा है क्या करता है, वो डेटा प्रिपेयर करता है. ओके, देखो डेटा कैसे आपको ऑलरेडी पता है. इन रियल लाइफ में देखोगे, रियल लाइफ सिनेरियो के बेसिस में देखोगे तो डेटा कभी भी कैसा होता है, हर जगह पे आपको ना एकदम अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, नो इशू, ऐसा कुछ नहीं होता. अब प्रॉब्लम्स मतलब क्या कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक, लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ डेटा, अगर एक शीट है, अब इस शीट में फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, दिस इज लेट्स से आपका हेडर है, ये आपके रिकॉर्ड्स है. ओके, हो सकता है क्या, होता ही है नॉर्मली. तो प्रॉब्लम क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है इन रियल लाइफ में देखोगे तो कहीं ना कहीं पे वो ऐसे मिसिंग वैल्यूज होते हैं कि जो वैल्यूज हमें पता नहीं होते ना, ऐसे मिसिंग वैल्यूज होते हैं ऐसे कहीं पे ना. अगेन ये जो मिसिंग वैल्यूज होते हैं ना, ये बहुत कभी कभी रैंडमली होते हैं, पता नहीं होता है क्यों है. ओके, रैंडमली अवेलेबल होते हैं, उसे कैसे हैंडलिंग करना है. कभी कभी ऐसा होता है कि सेम रिकॉर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि सेम रिकॉर्ड आपका यहाँ पे जो है, सेम रिकॉर्ड नीचे भी अवेलेबल होता है, कहीं डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं. कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, ऑल्दो सेम कॉलम नाम नहीं होगा, बट फिर भी जो कंटेंट इस कॉलम में है उसका सेम कंटेंट गलती से कभी कभी या फिर उसी की रिलेटेड सेम कंटेंट्स भी आपके कॉलम में भी आ जाते हैं. ओके, विच इज नॉट रेलिवेंट, जरूरी नहीं होता है.
कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, ये मैं कुछ इम्प्योरिटीज कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ आपको, हम वो देखेंगे प्रैक्टिकल बेसिस में। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है, फिर भी रखा होता है, 0 0 रखा होता है, कुछ ना कुछ रखा होता है, बस उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते या वेरिएंस नहीं होता है। तो क्या करें ऐसे डेटा का, क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये जो नॉलेज होता है ना, डीए वाले को, डीए वाले बंदे को प्रॉपरली पता होता है क्या करना है ऐसे केस में। तो इस डेटा सर को, इस जितने भी प्रॉब्लम्स है, बीए इसको में भी तो सबको वो सारे निकाल। टूल्स उनको यूज करने होते हैं। यस सुमंत। सर बीए में भी तो मतलब जो रहते हैं, मतलब देखा जाता है तो उसमें भी तो वो लोग सेम यही टूल्स पे वो लोग भी काम करते हैं, तो जो डीए करते हैं वो भी तो वो खुद भी करते हैं ना मतलब। हाँ तो मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आप देखोगे ना इनकी इसमें टोटल देखो में, तो इनका जो नॉलेज है, ओके, एज ए टॉपिक वाइज आप देखोगे तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जब प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंटेशन में जाते हो तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो ओके। फील्ड जहाँ पे काम करते हैं। ओके, हाथ में जब डेटा आता है ना तो तीनों के बेसिस में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट डेटा आने के पहले जो, या फिर डेटा आने के बाद में जो वर्कआउट करते हैं, देखो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस, क्योंकि उसको रिलेशन क्या, नॉलेज क्या है उसका, उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, तो पर्टिकुलरली एक बिजनेस या फिर एक डोमेन के हिसाब से, क्योंकि उसको उसका नॉलेज है, ओके, वो डोमेन के हिसाब से अपना काम करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस बंदा क्या करता है, डेटा आने के बाद में जो डेटा आ गया, अब उसमें वो नहीं वर्कआउट करते बैठता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट मोमेंट बिजनेस, सेकंड मोमेंट बिजनेस, वो नहीं करता बैठता है। वहां पे वो क्या करता है, डेटा के साथ में पुराना और अभी का डेटा कैसे वर्कआउट हो रहा है, ट्रेंड फाइंड आउट करना, उसमें कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, वो करता है। डीए का काम क्या है, जो इन दोनों को डेटा लगता है, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा, उस डेटा में कोई प्रॉब्लम्स ना हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेटा उसको प्रोवाइड करके दे, वो काम होता है डीए का, हिस्टोरिकल डेटा पे वर्कआउट करता है डीए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे काम क्या हो गया है, तो जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसको प्रॉब्लम्स को सब नलीफाई करके फिर निकाल के एक अच्छा, ओके, एक अच्छा डेटा जो मुझे प्रॉपर क्या करेगा, अच्छा डेटा होने से क्या होता है आपको, आपका जो इंट्यूशंस होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोरकास्टिंग पकड़ है, फिर आपका आगे का जो हम कहते हैं ना प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन मेथड होता है कि आपके जो भी वैल्यू आएगा प्रेडिक्शन आपका क्या है, रिलायबल रहेगा, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, उस प्रेडिक्शन पे क्या कर सकते हो, आप रिलाय कर सकते हो कि हाँ भाई इस प्रेडिक्शन के बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना है या फिर मैं ले सकता हूँ। ये कब अवेलेबल होगा पॉसिबिलिटी, जब आपका डेटा इस तरह के एनोमलीज ना रखते हुए आपको अच्छा डेटा वहां पे मिलेगा। ओके, लाइक दैट यू विल हैव दिस प्रेडिक्शन। अच्छा, ये प्रेडिक्शन होने के बाद में क्या है, सिर्फ प्रेडिक्शन यूज करते हैं क्या, नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं फिर उसे इनसाइट निकालने के लिए भी, जो भी आपको इनसाइट मिलेगा बेस्ड ऑन दिस डेटा, अच्छा डेटा, गुड डेटा में लिख देता हूं यहाँ पे, जो डेटा में आपको इनसाइट मिलेगा, जो आप उसमें से ड्रिवन करोगे, उसके हिसाब से क्या है आप समझ सकते हो कि अच्छा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट या फिर इस पर्टिकुलर सीजन में या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा सेल्स बढ़ता है, कम होता है। कम होता है तो क्यों होता है, ये जितने भी डिटेल्स है, ये खोजबीन करने के लिए आपको अच्छा डेटा जो लगता है वो डीए प्रोवाइड करता है, और उस इनसाइट को निकालने के लिए आपको बीआई हेल्प करता है। और बीए क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन के पास से आता है वो क्या करता है, बिजनेस में इंप्लीमेंट करता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस पॉइंट पे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं अब सिंस उनको तो प्रॉब्लम का आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया है कि दिस इज द प्रॉब्लम और ये उसका सोल्यूशन है, अब कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये कौन करेगा, ये थोड़ी बीए और डीआई करेगा। बीआई और डीए वो क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट करता है, उसे पता होता है कि किस तरह से मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ उस सोल्यूशन को। इज इट क्लियर guys, is it clear for Yes, sir. everyone? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. ओके, Yes, ओके, sir. अगेन एक ध्यान रखिएगा कि देखो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, मेक श्योर कि देखो किसी ने किसी का चेहरा देखा नहीं है, किसी ने किसी को मतलब किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। सो मेक श्योर कि क्या है कि आप लोग ने ऐसे ये मत सोचो कि अरे मैं कुछ कहूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, ओके, लेट इट बी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो छोड़ दीजिए टोटल। आपका आंसर, जो आंसर है वो सही है या रॉन्ग है, वो बाद में डिसाइड होगा, पहले आपका करेज देखा जाएगा कि आप बोलने के लिए खुद को आगे भी लेके आते हो कि नहीं। सो मेक श्योर कि प्लेस योर सेल्फ इन फ्रंट, ओके, खुद को आगे लेके आइए, पुट फोर्थ कीजिए खुद को, अपने ओपिनियंस फॉरवर्ड कीजिए। अगेन इट शुड बी रेलेवेंट, इरेलेवेंट ऑप्शंस मत दीजिए। बट ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक के रिलेटेड में कुछ आपको लगता है कि ये शायद हो सकता है कि दिस माइट बी लेट्स से एन एन ओपिनियन, तो आप जरूर दीजिए। ओके, अगर मैं क्वेश्चन कभी पूछूं, आपको कुछ पूछता हो तो डोंट बी ए साइलेंट पर्सन, ओके। साइलेंट कुछ काम का नहीं है, इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, इट विल नॉट गेन यू आल्सो एनीथिंग। सो इंटरेक्टिव रहेंगे तो बेटर रहेगा। सर ओके, नाउ सर एक बार किसी भी, पीछे हाँ बोलिए बोलिए।
तो इसमें अगर जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछ रहा है वो टेल मी लाइक व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीए डीआई एंड डीए, तो हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड कि लाइक वन वर्ड और समथिंग लाइक दैट, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट. Okay. Any, let's say, okay, DA is a role where this DA specifically works on historical data. Okay, it has a specific role. He will work on historical data. It will provide you the data which is clean data as per your requirement. It will provide you. It will create and it will provide you. BI क्या करता है? BI का अब ऐसा रोल नहीं है, ऐसा काम नहीं है कि क्या DA हमारा इंसाइट नहीं दे सकता क्या? नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि इंसाइट नहीं दे सकता है. BI का काम क्या है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और करंट डेटा. मतलब क्या है हमारे पास में? हिस्टोरिकल डेटा है और जो करंट डेटा है वो क्या करता है? दोनों को कंपेयर करता है. कंपेयर करके क्या करता है? ट्रेंड फाइंड आउट करेगा, उसमें से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गेन करके देगा. ये काम क्या करता है? BI. सो BI based on a data which is provided from data analytics, he will compare your historical data and current data and provide you insights. Once you have that insight, BA क्या करेगा? Based on its input, based on let's say the insight which has been provided, he will try to implement those steps or those let's say insights in your business. Again, it So can business be decision, so business analyst business decision create मतलब करता है ना वो insight लेके. हाँ वही बोल रहा हूँ. तो इंसाइट लेगा ना, उसमें से क्या करेगा बिजनेस एनालिस्ट. अबाउट अब ऑब्वियसली डीए ने क्या किया? अच्छा डेटा प्रोवाइड किया. बीआई ने क्या किया? उसमें से इंसाइट निकाला. बिकॉज डीए का काम क्या? हिस्टोरिकल डेटा पे है, करंट डेटा का तो उसको नहीं है. पर ये क्या करता है? बीआई करंट डेटा और वो दोनों कंपेयर करता है क्योंकि किस तरह से ट्रैवल वगैरह फ्लो हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है. उसके बेसिस में दोनों के इनपुट से क्या किया भाई? बीए ने कुछ रिजल्ट्स जो इंसाइट दिए उसको फॉरवर्ड किया है. बेस्ड ऑन दैट अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? हाँ, अब मुझे एक पर्टिकुलर पकड़ लो कि किसी भी एक लेट्स से कन्वेयर या फिर किसी एक पर्टिकुलर असेंबली लाइन है, मुझे उसमें क्या करना है कि ना थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना है. अब आप सोचो प्रोडक्शन बढ़ाना है मतलब क्या करना है? मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि इंस्टेंटली मैं सोचूं और जो स्पीड है कन्वेयर का, फिर जो प्रोडक्शन का स्पीड है वो 1 घंटे से बढ़ जाएगा. उससे क्या होगा मेरा? हाँ, 10 प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, 20 प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे. इज इट पॉसिबल इंस्टेंटली होना? No. नहीं है. इसंट इट? क्यों? क्योंकि देखो, आप जो कभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप कभी गए होगे, फिर असेंबली लाइन में कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि उसमें मल्टीपल बहुत सारे से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक साथ असेंबल होते हैं. तो कहीं कहीं मैनुअल होता है, कहीं कहीं मशीनरीज होता है. तो ऐसे केस में क्या होता है? इट डज कंज्यूम अ टाइम बिकॉज in some process it requires a precision, it requires a consistency, because वही प्रोसेस करते रहना है और आपको प्रोडक्शन में लिमिटेशन है ना भाई. ह्यूमन का क्या होता है? 8 घंटा 10 घंटा करें के बाद में फटिकनेस आएगा. उसके बाद में फिर शिफ्ट चेंज होगा तो कहीं बीच में ब्रेक देने होंगे. अब मशीन तो नहीं जो कंटिन्यू काम करेगा, उसमें भी क्या है? हर एक का बंदे का स्पीड अलग होगा. सो किसी भी एक प्रोसेस को अगर आपको ऑटोमाइज करना है, फिर उसे अगर प्रोडक्शन में बढ़ाना है तो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चीजें करके इनपुट देना होता है. प्रॉफिट चाहिए मतलब हम एकदम से नहीं कर सकते. तो ये डिसीजन कौन लेता है? बिजनेस एनालिस्ट. किस तरह से किस पेस में करना है फिर वो बिजनेस एनालिस्ट आपको देगा. अच्छा, यहीं पे सर्कुलर खत्म हो जाता है क्या साइकिल? नहीं. फिर से जो उसने डिसीजन लिया है, जो उसने उसका पर्टिकुलर एक लेट्स से कह सकते हैं कि प्रोसेस अप्लाई किया है, फिर से डेटा एनालिस्ट के पास में हिस्ट्री का डेटा आता है, फिर से वर्कआउट करता है, फिर बिजनेस एनालिस्ट इंटेलिजेंस चेक करता है, फिर कंपेयर करता है क्या सही में ग्रोथ हुआ है या कुछ उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है. सो एवरीथिंग इज ऑन साइकिल, ये चलता रहता है. क्लियर है? सर सर मतलब जैसे कुछ ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो एक्सेल से इंटीग्रेट हो गए हैं या और बाकी सब से, तो सर उससे मतलब क्या यूजफुल रहते हैं? मतलब कैसे डिफरेंट होता है मतलब वो करना उससे और जो हाँ मैनुअली उसमें किया जाए? बताता हूँ. या श्योर. देखो होता क्या है, देखो उसमें कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल एक पकड़ लो कि अगर सबको पता है बट फिर भी एज एन एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं. जैसे सम एक एग्जांपल है. ओके, ये क्या है? सम एक फंक्शन है, ये मुझे फंक्शन यूज करना है. अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जिन लोगों को ये पता है वो तो डायरेक्टली यूज करेंगे और क्या बोलेंगे? हाँ भाई ये 2 इनपुट है मेरे, इन दोनों को मेरे को सम कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल 2 और 3 है तो आंसर हो जाएगा आपका 5. यहाँ पे ये आ जाएगा. चलो, बट किसी को अगर पता नहीं है कि ये भाई ये फंक्शन सम है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे इन दोनों को ऐड करके चाहिए. अभी के लिए एग्जांपल के 2 सेल को ऐड करना है, उसका आंसर चाहिए. यह क्या करता है? यू डोंट हैव टू लर्न दिस, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दिस, ये आपको रिमेंबर करना नहीं है. वो क्या करता है? आपके क्वेश्चन, आपके इनपुट के हिसाब से प्रॉम्प्ट, अगेन प्रॉम्प्ट के हिसाब से क्या करेगा? आपको ये 2 चीजें का ना आपको आंसर दे देगा कि आपको यूज करना है सम फंक्शन और उसमें क्या देना है? ये 2 इनपुट दे देने हैं. सिंपल है. नीचे प्रॉम्प्ट के साथ में वो ये भी दे देगा
कि अगर आपने हम्म। एग्जैक्ट सेल नंबर दे दिया है, फिर उसका अगर एग्जैक्ट आप एड्रेस दे दोगे तो आपको वो फॉर्मूला भी बना के दे देगा कि इज इक्वल टू सम, उसका एड्रेस ये है करके। एआई क्या करता है, इट सिंप्लीफाइज, आपको जहां पे हर एक फंक्शन को याद रखना ना पड़े, ओके, और इंस्टेंटली उस जगह पे वो आपको फंक्शन यूजफुल हो जाए। क्योंकि होता है ना बहुत सारे जगह पे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सम इफ यूज करना चाहिए, या सम इफ्स करना चाहिए, या हमें एवरेज इफ करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी सिनेरियो में। तो ऐसे केस में बेस्ट कौन सा रहेगा, इंस्टेंटली आपको एआई दे देगा, ओके, तो वो आपको हेल्प करेगा। सो इट विल हेल्प यू टू चूज इन फास्टर मैनर। एक्यूरेट होगा इसकी गारंटी नहीं है, okay, there is no accuracy, but yes, it will help you in some extent to minimize the time, okay. ओके सर। सर जैसे आपने सर। बताया हम्म डेटा एनालिटिक्स का, जैसे कि आपने बताया कि डेटा एनालिटिक्स का बेसिक काम यही होता है कि रॉ डाटा को एक क्लीन डाटा बनाने का, और सेम Exactly. चीज बीआई ये करता है कि वो एक इंसाइट देता है। बिजनेस एनालिस्ट वो इस इंसाइट को यूज करके बिजनेस में कैसे बेनिफिट हो सके, वो इंसाइट की मदद से फिर वो सेम साइकिल रिपीट होता है बेस्ड ऑन द, अगर कोई चेंजेस हुए तो उसके हिसाब से फिर वो वापस डेटा एनालिटिक्स बीआई और ऐसे करके जाता है। correct, यही correct, तो यही correct, मतलब सर yes, मैं बोलता हूँ जो डेटा एनालिस्ट है सर वो पुराने हिस्टोरिक और रॉ डाटा पे काम करता है सर, करंट डाटा पे काम नहीं करता। नहीं करंट देखो, ये- जब आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हो, सही, देयर आर टू नेम्स, जी, ओके, डेटा एनालिसिस एंड एनालिस्ट। दिस नेम इज अ analyst। बिट, लेट्स से, हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ये बहुत जगह पे यूज नहीं किया जाता इतना डेप्थ में, आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। व्हेन वी से एनालिसिस ना, एनालिसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके, इट विल हैव अ कंटिन्यूअस आल्सो। बट व्हेन यू से डेटा एनालिस्ट मींस इट इज बीन डन हिस्टोरिकल डेटा, उसका नाम में ही है हिस्टोरिकल डेटा, ओके, सो हिस्टोरी पे काम करता है। एनालिस्ट